So we should start recording. I should share the screen. Let me open the chat window as well. And before we continue, let me see if yes. So everybody online, can they hear me? Just say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay, that is done. So I think we are all set. Okay, so Assalamu alaikum everyone. Am I recording? It seems like it. Okay. So how are you guys? And doing programming or not? No. Yes. A bit. Okay. Um, okay. So we are going to move ahead with another topic. So we are going to get one topic after another. Uh, the voice is not clear. I cannot really help with that. Maybe I can. So I have another microphone. So, but once I just put this in, so you will have to type your questions because uh, the the speaker will stop working. Okay, so you can type your question and I will return to your questions that way. So I hope the sound is clearer now. Okay, so we were where we were. Okay. So we are going to get one topic after another, and we are slowly going to like cover more and more topics, and ultimately we will have all the knowledge that we need. Uh, well, you guys will have all the knowledge that you need in order to write your own programs. Okay. Currently, you have seen that we start from very humble beginnings, and now we are starting to make a slightly complicated programs, and it has started to become a little bit of fun. Okay. There are still some important topics remaining. Arrays is one of them, and we will cover all these topics slowly. Uh, uh, you will be getting your first assignment very soon, and I'm thinking that once your assignment is done, that is when I'm going to take the quiz. Okay, so I'm going to start taking quizzes. Another change that is going to happen is that since there has been pandemic and we have been told like we are not supposed to take the midterm, so we have to allocate the weightage of midterm into something else. So most likely that will go into assignments and quizzes. Okay. Uh, so anyway, first of all, we will give you an assignment, and once the assignment is more or less going to be the practice for you guys, it will be graded, but take it as a practice for you guys that you just go back and solve the questions. um, do them yourself, and that will prepare you for the quiz which is going to happen. So everything is going to be online, even for the quiz, but for the quiz normally what happens, the question is unseen, and you have you do not have a lot of time, so like maybe you will have 30 minutes or 20 minutes to complete the quiz, and you need to have that in some specific time slot. So it will be open for a very short duration, and you have to make sure that your internet is working. Okay, so if somebody comes and later says like I had a certain net problem, that's not going to be entertained. So you have to keep backups for yourself. Okay, so if you have internet connection, if you have phone connection, whatever connection you have to keep the backup for yourself. Okay, you have to be prepared for that.
All you will need to do is, like, once you get the question, so all you need to do is, later you have to fill out your answer and put it in a file and just upload the file. So you don't have to solve it online. You just have to upload it online. So you have to, like, take care of about 1 minute of time where your internet should be working. Okay. uh, 1 minute of time where you have to see the question, and 1 minute of time when the internet is working. So that is what you have to take care of. So hopefully nobody is going to have that problem. You can even do that with a mobile phone. Okay, so I don't see any problem with that. The only problem is that if you don't know how to make a hotspot, learn that. Okay, so you might require that. Okay, so we are moving forward with arrays, and the array is the uh, first data structure that we are going to cover in Java. This is one of the most basic data structure which is common in almost all of the languages. So you might have heard about arrays before. We are going to cover them right now. Some people might already know that. Some people may not know that. So we are going to, like, go through this once again and see what array is all about. Okay, and when okay. Uh, you have actually encountered arrays before. Some of you might actually know that, but some of you might not know, like, where have you encountered arrays before. You have actually, from day one you have been doing that. uh, uh, okay, so we will understand arrays now to solve a bit of confusion that has lasted to date. So when you say about arrays, so you normally say that there's an array of cars available, there's array of poles. So that is the array. So array of an array of solar panels. Okay, so this array has come from that concept. Okay, so when something is in continuity, is the same thing over and over again, so it's called an array of something. Okay, so this concept has come from that point. Uh, so we have been manipulating and using data in the past classes and labs. So the data in itself was quite basic, and we mostly work with single literals. So we were declaring a single string, we were declaring a single integer, we were declaring a single double, and we were working with those literals. So the problem comes in, like, what if we have a large amount of data? Okay, so suppose, like, in this case, we have about 46 students in the class. So if I want to declare the names of all the 46 students, so I will need to declare 46 string variables to store the names of all the 46 students. So it will be for student 1 is equal to maybe Talha, student 2 is equal to Ahmad, student 3 is equal to Kamal. So these uh, we can have multiple variables for each and every student, and we have to then we have to, like, it becomes very difficult to understand, difficult to remember where, like, which student we are talking about, and how, and if there are a lot of students, suppose even now there are 46 students, so you will have to write string student 1, string student 2, string student 3, or string student 1 comma student 2 comma student 3 comma student 4. So you will have to, like, write all those names. Okay, so it becomes cumbersome. uh, and secondly, like, the second example is that till now, so they're having so many players in the Pakistan cricket team. So if you want to, like, collect the data, like, what were their average scores, so you will need to have a very long list of names with a very long list of average scores, and then will have to declare all the variables that way. So again, it will become cumbersome. For such cases, we use an array. So you have a question? We'll come to that. Okay. uh, okay, so how normally memory works? So as I said before, whenever you say, like, memory in computers, when we are talking about memory, there are actually two kinds of memory in a computer. The first memory is within the CPU, the central processing unit. It has some registers, and the actual memory, that is the fastest memory available to a computer. Afterwards, there's a second memory where you can call it RAM, and that's why, like, whenever you say, like, we are going to build a PC, so what RAM are you installing that PC? So you say we are installing 16 gigabytes of RAM or 32 gigabytes of RAM. Okay, so that RAM is slightly slower, but it is again a lot of memory which is accessible to the computer.
Okay. So whenever you declare a variable, so what the computer checks is that, okay, out of all that memory, which memory is free. Some of the memory, so what happens when you compute, when you turn on your computer, all your operating system is on in your hard drive. Okay, so the computer, the processor accesses the hard drive, and and starts putting all the data, whatever it reads, into the RAM. Right. So some of the data is stored into the RAM. So RAM is gets occupied. Okay. So that occupied space is being used by the operating system. Then when you declare a variable, what happens is that it checks, okay, I have, the computer sees like, okay, I have this a big amount chunk of RAM, and this part of the RAM is occupied, but this part of the RAM is free. So now I should declare a variable in one of the free parts. In computers, every memory location, it has an address. So like a home address. Okay. So for example, at my home, okay, so currently there are about 9 people over there. Okay. But sometimes there are 4, sometimes there are 5. Every morning when I get up, I leave the my home. So the number of people decreases. It increases when I get back home. Okay, so it's kind of like a variable which is changing its value, but that variable is present at a certain address. Okay. So similarly, you have a home address, and whenever you leave the home and you could go back again, there's a variable which is changing its value, and you have your own certain address. Okay. So whenever you say that, okay, uh, how many people are in your home, so you, since you call it home, you don't call it like okay, like bangla number 4, gali number, that you don't call it that, you say home. Okay, so that is the name that you have given to that variable. Okay, so to that address you have given the name home, and you are being asked like how many people are in your home, मर्दमशुमारी हो रही है, पूछ रहे हैं आपसे. ठीक है, so आप कहते हैं मैं कि मेरे घर पे इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग होते हैं. ठीक है. So what you are doing, you are actually telling, you are given the address a certain name, right? This is what has happened. कुछ लोगों ने वैसे ही नाम रखे होते हैं, कोहसार रखा हुआ होता है, किसी ने लिखा होता है कि गुलशन नाम रखा हुआ है उसका. ठीक है, मेरा गुलशन लिखना, आप जो नाम रख लें उसका. ठीक है, तो हो यही रहा होता है कि एक एड्रेस है, उसका आपने कोई नाम रखा हुआ. ठीक, कंप्यूटर में यही होता है. व्हेन यू डिक्लेयर वेरिएबल, so the computer finds an address, has a list of memory address. How does it have the list of memory address? Because you have put in a stuck in a hardware, and that hardware has memory location, and those memory location have a certain memory address. So the computer knows that memory address. So whenever you declare a variable, you are actually naming one of those addresses. ठीक है, नाम दे दिया उसको. फिर जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो फिर उस एड्रेस में जाके वैल्यू स्टोर करते हैं. ठीक है, तो अब जो उसका नाम होता है, जो एड्रेस होता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉर्मली इन हेक्साडेसिमल वैल्यू. इट्स लाइक 0x0113ab5, something like that. So for you it's very hard to say, okay, I'm storing variables in 0x011384 5. ठीक है, आपके लिए आसान किया कि आप उसको एक नाम दे दें. आई एम स्टोरिंग वेरिएबल्स एट ए, values at a. I'm storing values at 25 at data. Okay, so that way it's easier for you, and since we have given it a name, so it's easier for the computer to access that variable, access that value through that name. Okay, so that is how normally memory works. So whenever you write integer a, what happens? There is a memory location. It gives it a certain name a, and it stores the value over there. For arrays, what happens is that when you say like you write int a and in brackets you write 3. So what you're telling computer is that, okay, find a certain memory location, and you have to occupy at least 3 memory locations for me. Okay. Normally you occupy just one location, but now you're telling the computer, because my array is of length 3, I want to store 3 values, so you have to occupy 3 consecutive memory locations for me. Okay, so instead of allocating, instead of occupying one memory location, it occupies multiple memory locations. Okay, so I'll show you like how this happens. I'll have to move this slightly. Okay, let me like minimize this. So suppose this is our memory. We have location from 0 to 6. Suppose we are way back in the past. We are in the 1940s, and we are allocating some memory location to our computer. So we write the code, if it works. We write the code int number.
Okay, so we have declared a variable. So what will happen is that it will randomly pick any location. In this case, it's picked 0, and it has started calling a number. Right? Then you write double, and we call it dec, and it will pick any random memory location, and it will start calling it dec. Okay, so now whenever I store something in number, it goes into the number memory location. When I store something in DEC, it's dec, or it goes to the 6 memory location. Okay. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are the memory locations that are available. So for simplicity, I'm not giving it in hexadecimal values, I'm giving it in decimal values. Then when you write int r is equal to new int, so this is how you declare your array. Okay, so now to look at that int, the I should be small. Okay, I have a typo. Okay, so I will correct that. So int, so you write int, you write the square brackets. The square brackets signifies that this is an array. ठीक है, आप ऊपर देख लें इंट नंबर, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखे हुए, ऐसे मैंने लिखे हुए. ये तो इफ यू सी द स्क्वायर ब्रैकेट, इट मींस लाइक आई एम डिक्लेयरिंग एन एरे. ओके, एंड द नेम ऑफ द एरे इज ARR. ठीक है, if I write just that int array and put semicolon over there, I don't put equal to new int, I don't do that, even that is fine. I'm just telling the computer that okay, I am declaring an array, but I'm not defining the length, because right now I'm not sure how much data I'm going to get. Okay, but if you are sure like how much data you have, you write int array is equal to new integer. Okay, so this is a syntax that you have to write. Okay, अब कहीं क्यों लिखते हैं, बस लिखते हैं, that is how it has been defined. Okay, so you write new integer, you get creating new integer, and how many values? 3 values. So you have given 3 values over there. Okay, we will come to this again. Okay, so don't worry if you don't understand it right now. सर तो ये int डेक क्यों नहीं लिखा हुआ? int नंबर फिर int मतलब int डेक भी तो लिख सकते थे. Int deck, मतलब इंटीजर हमने इसको क्यों नहीं मतलब डेक को हम डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल की तो हम डबल ही क्यों किया? कर देते हैं, ये तो एग्जांपल है. तो शायद यही कुछ पैटर्न नहीं, पैटर्न कोई नहीं, ये तो एग्जांपल है. मैं दिखाया था कि आई एम डिक्लेयरिंग न्यू वेरिएबल्स, सो इट्स गोइंग टू एलोकेट वेरिएबल्स. ठीक है, so if I write something like this, okay, so what it will do, it will go to one memory location, and since I have 3 memory location there, okay, I have written its size to be 3, so it's going to point towards the first memory location, and then it knows that afterwards there are 2 more memory locations, and total number of them is going to be 3. So now this variable is present at location number 2. So 2, 3, and 4. So these are the memory locations which are being occupied. So currently the memory location we have free is 1 and 5. So now if I declare more variables, they are going to go into either 1 or 5. Okay? G. New. Yes. ये वेरिएबल ही है. ठीक है, इट्स नॉट, इट्स अ डायनेमिक वेरिएबल. पता है डायनेमिक और नहीं पता? उसको समझने के लिए C++ पढ़ना पड़ेगी. ठीक है, तो अभी फॉर द टाइमिंग लेट्स कीप इट एट दिस. ठीक है, मैं अभी आपको ऐसे समझ में आ जाएगा. ठीक, मैं आपको बल्कि हो सका तो मैं आपको इसी में समझा दूंगा. ठीक है, सो एनीवे आपने लगता है थोड़ी सी पढ़ी हुई है जावा. उसमें डायनामिक पॉइंटर्स नहीं बनाए कभी आपने? डायनामिक पॉइंटर्स नहीं बनाए सी के अंदर? वो सिमिलर है. ठीक है, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता, बात ये है क्लास को मुझे नहीं पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट आई ट्राई. ठीक है, okay, so actually when you write something like this in Java, you are actually declaring a pointer. ठीक है, pointer का मतलब ये है कि there is somebody who's pointing towards a certain location. ठीक है, आप कहते हैं कि तो ये आप जब भी लिखते हैं ना इंटीजर एरे या ब्रैकेट्स में डाल के, so you are actually creating a pointer. उससे कहते हैं उधर पॉइंट करना शुरू कर दो, उधर पॉइंट करना शुरू कर देता है, और फिर आपसे कहते हैं कि अच्छा आप उस जगह पे नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट करो, दैट्स व्हाई देयर इज अ न्यू ओवर हियर.
उसे कह पॉइंट करने से पहली जगह पे पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे। अब उसको ये नहीं पता कि इधर से आगे कितना मुझे करना है, आगे कितनी लोकेशन है। उसे पॉइंट तो करना शुरू कर दिया, लेकिन इट डजंट नो लाइक हाउ मेनी लोकेशंस इट हैज टू पॉइंट टुवर्ड्स। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ से शुरू हुआ, जाएगा कहाँ तो मुझे नहीं पता। सही है। उसके बाद आप उसमें लिखते हैं न्यू इंट। ठीक है, यू आर टेलिंग इट टू क्रिएट न्यू इंटीजर्स। हाउ मेनी? 3। तो उससे आपको पता चलता है कि इस एरे की लेंथ है वो 3 है। ठीक है, तो यू हैव एरे 0, यू हैव एरे 1 एंड यू हैव एरे 2। अब आपका सवाल था कि कहाँ से शुरू होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो पहला इंडेक्स है इन प्रोग्रामिंग, नॉर्मली द फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज 0। इन वेरी फ्यू लैंग्वेजेस इट्स 1। ठीक है, तो 0 से ही आपकी हर चीज स्टार्ट होगी। फॉर लूप नॉर्मली 0 से लोग स्टार्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट। आपका एरे होगा 0 से आपका स्टार्ट होगा, आगे लिंक लिस्ट होगी 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, हर एक करेंगे इस तरह। तो इस तरह नॉर्मली वही 0 से स्टार्ट किया जाता है। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज नॉर्मल इज ऑफ इंडेक्स 0. So now I have declared 3 variables. So this variable int arr, it's actually pointing towards 3 variables. So मैं इसको टाइपो सही कर दूं इसका, मुझे अभी तक वो तंग किया जा रहा है। So okay, so it will declare these 3 memory location. अब मैं देखता हूँ कोई सवाल तो नहीं हो गया ऊपर से। सवाल कोई नहीं हुआ। So it seems like everybody is getting it. ठीक है, so as I said that we have been using arrays all this time, so we have been doing that and this is where we were using it. ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर जब हमने शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी इसको लिख दें। ठीक है ना, ज्यादा परेशान ना हो, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। ठीक है, अब वही है कि आहिस्ता आहिस्ता वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब इसमें वॉइड का शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया वॉइड क्या है। अगर नहीं समझ में आया डोंट वरी, वी विल कवर दैट। पब्लिक पब्लिक तो ये एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो वो तो पब्लिक एक्सेस है, एवरीबॉडी कैन एक्सेस दैट। ठीक है, स्टैटिक यू विल कम टू नो व्हाट दैट इज। ठीक है, तो स्टैटिक वॉइड अभी रह गया, हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अब ये फंक्शंस में आएंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर सिर्फ स्टैटिक रह जाएगा। और वो भी फंक्शन को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर मुझे ये तो स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग हमने आर्ग्स ये वाला काम कर समझ रहे थे। में अब आया। आपको याद होगा कि उसमें आप क्या करते थे? आर्ग्स, फिर आप ब्रैकेट्स में 0 लिखते थे, फिर ब्रैकेट्स में 1 लिखते थे, ब्रैकेट्स में 2 लिखते थे, ब्रैकेट्स में 3 लिखते थे। तो आप क्या कर रहे थे? कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखते थे तो एंट्रीज देते थे, तो दे यूज्ड टू गो इनटू एन एरे। ठीक है ना, दे यूज्ड टू गो इनटू एन एरे एंड यू वर एक्सेसिंग दोस वैल्यूज बाय 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड मोर इफ देयर आर मोर एंट्रीज सो यू वर पुटिंग मोर एंट्री। तो हो ये रहा था। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि मेन फंक्शन जो है इट ऑलवेज एक्सेप्ट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। हम ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि यू व्हेनेवर यू आर रनिंग द मेन फंक्शन यू आर गिविंग द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। whenever you're giving the command line arguments, they are always taken as string values. That's why there are string arguments over here. ठीक है, तो ये array था। अब इधर देखें कि इसमें लेंथ नहीं डिक्लेयर हुई। there is no length declared here. अच्छा, array तो है, लेंथ क्या है? लेंथ क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता आप कितनी लेंथ दे रहे हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कभी 2 देते थे, कभी 3 देते थे, कभी 4 देते थे। ठीक है, और उस हिसाब से कंप्यूटर काम करता था। ठीक है ना, तो उधर हम ये इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आप लोग काम कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा हम क्यों कर रहे थे। पहले था ज्यादा कंफ्यूजन था, भाई क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। अब उसके पीछे ना रीजनिंग आना शुरू हो गई। ये जावा में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ना शुरू में आपको ना एकदम से चीजें आपके ऊपर डाल दी जाती हैं कि भाई बस इतना काम शुरू कर दो, बाद में समझते रहो। ठीक है, तो शुरू में तो कंफ्यूजन ही रहती है कि भाई क्यों, वाई। ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो बेटर वे ऑफ टेलिंग दिस। इंस्टेड letting you know of all the topics and slowly and surely you will come to understand what was happening. Can you repeat the last few points about string args array? Well, the only point was that जो हम जब भी लिखते थे कमांड लाइन में काम करते थे, we were giving some input values. तो हम उनको input values को हमेशा args0, args1, args2, args3 से करते थे। और वो इसलिए करते थे because this string args was an array. ये ना आप देखें वहाँ अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें इंटीजर ब्रैकेट्स करके मैंने लिखा हुआ था एरे। ठीक है, इसमें वही इसी तरह स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सो इट्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, दैट वाज एन एरे ऑफ इंटीजर्स। एरे ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या है कि एक साथ कंसेक्टिवली 3 इंटीजर्स थे। इधर स्ट्रिंग्स है कंसेक्टिवली, और कितने हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसने लेंथ नहीं डिफाइन की हुई।
और उसे पता कैसे चलता है, जब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जब दे रहे होते हैं उस वक्त हम उसको जो इनपुट देते हैं उसके हिसाब से वो कहता है अच्छा 3 इनपुट है, इसकी लेंथ 3 होगी, 4 इनपुट है लेंथ 4 होगी, 5 इनपुट है लेंथ 5 होगी, तो उसका अंदाजा लगाता है। जी आपका क्वेश्चन? फिर मैं कह रहा था ये जो आर्क्स लिखा हुआ है ये आर्क्स एरे का नाम है या नहीं? फिर वो खुद करता है ना, वो इनपुट के बेसिस पे करता है, ठीक है ना। जब आप इनपुट दे रहे होते हैं, व्हेन यू रीडिंग द मेन फंक्शन, यू राइट जावा द नेम ऑफ द क्लास and then the number of arguments you give it. So it counts the number of arguments and it will declare an array based on the number of arguments that you are passing to it. ठीक है ना, ये by default Java में built in, ठीक है, Java नाम की फंक्शनैलिटी दी हुई है। What does main mean? Main आपका भाई मेन फंक्शन है, अभी तक आप हमेशा क्लास के अंदर मेन फंक्शन चलाते हैं, ये उस मेन की बात हो रही है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्लास समथिंग, उसका नाम मेन फंक्शन लिखते थे, दैट इज व्हाट द मेन इज। So the ARGS is the name of array. Yes, Ali, you are right. So ARGS, which actually stands for arguments. So this is the name of the array in this case. Okay. Any other questions? Okay, समझ में आ गया, good. अभी हम करेंगे ऐसे, फिक्र ना करें, we will go through this. Okay. यहाँ पे सबको समझ में आया हुआ है अभी तक? क्या चीज? As far as I know, no. मेरा नहीं ख्याल, लेकिन आप देके देख लें, इसका कोई ठीक है ना, वो करके देख लें, पूरी बार चल जाए, दे सकते कि नहीं दे सकते, ठीक है। नॉर्मली होता ही है, आप आर्ग्स लिखते हैं ना, आप अगर बना रहे हो ना, फिर आप जैसे ही आर्ग्स लिखते हैं ना तो कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर लेता है और एकदम से आपको कहता है कि इसको रन करना, डीबग करना, तो उससे अंदाजा यही होता है कि ये इट डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स, बट इट मे, आई डोंट नो, ठीक है। क्या ब्रैकेट में कुछ ना लिखे? नहीं तो फिर कंपाइल नहीं करता ना, इट डजंट जो मेन फंक्शन है वो उसका एक उसका फॉर्मेट है, उसको हमेशा देखता है कि वो फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। फॉर्मेट अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर उसको वो शायद उसको रन कर ले, नहीं फिर उसको सेपरेट क्लास आइडेंटिफाई करेगा, मेरे जहां तक ख्याल है कि उसको रन नहीं करेगा, ठीक। अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शन है तो पहला जो फंक्शन है वो हमेशा मेन का होता है, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल फंक्शन आप बना सकते हैं, उसमें आपको ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर वो उसको वो वाली क्लास में कंसिडर करेगा, जब हम फंक्शंस पे जाएंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा उस वक्त। नाउ दिस इज एन एग्जांपल। सो अब इसमें क्या हो रहा है, हम सबसे पहले इंटीजर एरे डिफाइन करें, ARR, मैंने उसका डिफाइन नहीं, ऐसा पिछले बार डिफाइन किया था। I just write integer ARR. So now in the first line, I'm telling the computer that I'm declaring an array. So what I'm doing, I'm actually declaring a pointer. So मैंने कह दिया कि एक पॉइंटर बनाया, उसने की तो पॉइंट करना शुरू कर दिया कि okay, I'm pointing towards this location. How many values are there? I don't know, but I'm just pointing over there. कुछ है वहां पे, कितना है मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं लिखता हूँ AR is equal to new int 5. अब मैं कह रहा हूँ जहां पे तुम पॉइंट कर रहे हो वहां पे 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दो, ये न्यू है ना, सो वी आर गेटिंग न्यू वैल्यू, ठीक है, तो उसे 5 मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दो, ठीक है। वो एलोकेट हो गई। तो अब ये जो एरे है वो पहले पॉइंट कर रहा था, उसको पता ही ना कि लेंथ क्या है, अब पॉइंट कर उसको पता है लेंथ कितनी है, लेंथ इज 5, ठीक है, ये हमने दूसरी लाइन से हमने ये कर लिया। उसके बाद फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्या कर रहा है कि इट्स गोइंग फ्रॉम 0 to 5, यानी 0 1 2 3 4, और एरे जो 0 लोकेशन है उसमें क्या वैल्यू डाल रहा है, 0, 1 में क्या डाल रहा है, 2 2 3 3 4 4। सो सबसे पहले उसने एरे डिक्लेयर किया ऑफ लेंथ 5, ठीक है, और हर लोकेशन के अंदर उसने 0 1 2 3 4 करके सारी वैल्यूज डाल दी। मैं अगर यहाँ पे एरे आई इज इक्वल टू अगर मैं 0 कर दूं, सब जगह पे वो 0 डाल देना, ठीक है। अगर मैं फॉर लूप ना लिखूं तो ऑटोमेटिकली जावा सबको 0 असाइन कर देगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग का एरे है, तो ऑटोमेटिकली सारा स्ट्रिंग नल कर देगा, इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, नथिंग विल बी देयर। लेकिन आप सब उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे। पहले डिक्लेयर किया, फिर उसे इनिशियलाइज किया। अब देखिए इनिशियलाइज करने के लिए मैं यूं लिख सकता था, मैं यूं भी लिख सकता, मैं दिखाता हूं आपको। आई कुड हैव रिटन इट दिस वे, ARR 0 is equal to 0,
मैं ये यूं भी लिख सकता था, ठीक है, और फिर मैं करता ARR1 is equal to 1 एंड सो ऑन। अगर मैं करना चाहूँ मैं यूं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं 2 के लिए भी यूं ही करता, 3 के लिए भी यूं करता, 4 के लिए भी यूं करता, ठीक है। लेकिन मसला क्या आता है, मसला आता है कि सपोज आई हैव 200 वैल्यूज, ठीक। अब मैं 200 तो नहीं लिख सकता ना, मुसीबत है, इट्स डिफिकल्ट। सो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली मेक इट 200 एंड डिक्लेयर एन एरे ऑफ वैल्यूज 200, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली ड्यू टू माय एल्गोरिथम इट विल इनिशियलाइज ऑल द वैल्यूज, ठीक है। मैं उसका भी करना चाहूँ, मेरे पास बहुत सारे टाइम है और मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ। अगर आप ये कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं अपना, उसमें आप कुछ और काम कर लें, ठीक। तो ये इनिशियलाइजेशन समझ में आई। ऑलराइट, ये एक और तरीका है एरेस को डिक्लेयर करने का, ठीक। मैं वैल्यू डिक्लेयर करना चाहता था, सपोज मैं चाहता था कि मैं सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनकी मैंने वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो मुझे डेटा टाइप कौन सी होगी है, डबल, ठीक है, डबल होगी। तो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू स्टोर करूँ तो मेरा एरे क्या बनेगा, डबल का एरे बनेगा। सो आई कैन कॉल इट डबल एंड गिव इट एनी नेम, कॉल इट माइक्रो, लेट्स कॉल इट माइक्रो, ठीक है। तो मैं करूंगा डबल क्योंकि 3 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सो इट द लेंथ ऑफ द एरे विल बी 3। तो मैं एरे डिक्लेयर करूंगा, डबल का टाइप का होगा, नाम उसका मैंने माइक्रो रख दिया, उसकी लेंथ क्या 3। तो मैं करूंगा डबल ब्रैकेट्स माइक्रो इज इक्वल टू न्यू डबल और ब्रैकेट्स में 3, ठीक है। तो उस समय सर ये डिक्लेयर, वाली बात समझ नहीं आई अब सर। फर्ज क्या है कि फर्ज करें कि ये तो मैंने कर दिया, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है। तो एक तरीका तो ये मैं लिखूं कि माइक्रो 0 उसमें प्रोटॉन की वैल्यू डाल दूं, माइक्रो 1 उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दूं, माइक्रो 2 उसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू डाल दूं। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दिस। दूसरा तरीका क्या है सर कि मैं लिखूं कि डबल ब्रैकेट्स माइक्रो इज इक्वल टू, और ब्रैकेट्स में इन तीनों की वैल्यूज लिख दूं, ठीक है। तो इधर मैंने वही लेकिन सर काम ये किया मैं तीनों इंटीजर के एरे साथ में स्टोर कैसे हो रहे कि हैं? मैंने अल्फा लिखा इंटीजर एरे, मैंने लेंथ नहीं लिखी कि कितना है, न्यू नहीं लिखा, मैंने इज इक्वल टू करके ब्रैकेट्स लिखे और उसमें 1 2 3 4 कर दिया, 0 1 2 3 4। तो ये करने से कंप्यूटर खुद ब ये खुद क्या करेगा, एक न्यू इंटीजर डिक्लेयर कर देगा, न्यू एरे, ठीक है, और उसके अंदर ये पांचों की पांचों वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मेरी वैल्यूज क्या होंगी, तो पांचों मेमोरी लोकेशन कंसेक्यूटिव है ना। बना के अब उसमें वैल्यूज असाइन कर देगा। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स, अब आपको मार्क्स पता है, ठीक है। तो यू विल राइट इंटीजर ब्रैकेट्स में मार्क्स इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में सारे मार्क्स आप एक एक करके लिख दें, आगे सारे मार्क्स आपके सब्जेक्ट से उसमें आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द मार्क्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपको पहले से ही पता है कि वैल्यूज हैं और उनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना, दे आर रैंडम वैल्यूज, देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस टू इट, तो आप उनको ना डायरेक्टली ब्रैकेट्स में करके उस सब को आप लिस्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसमें एरे डिक्लेयर कर देगा। अब इस केस में जो पहला है, इस केस में ये एरे ऑफ लेंथ क्या होगी, 5, बिकॉज दे आर 5 एलिमेंट्स, तो एरे की लेंथ ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। दूसरे केस में एरे की लेंथ क्या, ये गलत लिखा है मैंने, क्या गलती है, ब्रैकेट भूल गया, ठीक है। तो एरे नहीं int नहीं लिखा। ये क्या बात पे जाओ। तो अब ठीक है, अब दूसरा भी मैंने एरे डिक्लेयर किया, इट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और इसकी लेंथ कितनी है, 3, बिकॉज 3 एंट्रीज ओवर देयर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये रैंडमली 3 पोजीशन पे कर देगा। अब मुझे एग्जैक्टली इनका सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है, तो होपफुली दैट विल आंसर द क्वेश्चन। So this is the case. So let's go to MS Paint. ठीक है,
तो हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, यूं करके मेमोरी लोकेशंस आ गए हमारे पास। कंट्रोल, बल्कि इसको मैं यूं डिक्लेयर कर देता हूँ, एक मिनट। ये किया। मैं कहा था ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वो इसी तरह ही चलेगा। ये तो ये मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेमोरी लोकेशन। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9। ठीक है, तो ये आगे पास मेमोरी लोकेशंस हैं। अब क्या करते हैं, हमने इंटीजर लिखा कि फर्स्ट के में लिखा है इंटीजर, और हमने लिखा ARR, वी पुट इट इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, हमने ये लिखा, हमने ये कोड लिखा। सबको नहीं नजर आ रहा इसको? इसको मैं कोशिश करता हूँ बड़ा करने की। इसको 18 अब आ रहा है? ठीक है, मैंने ये लिखा। ठीक, अब क्या करेगा कि व्हाट इट विल डू इज, इसमें से कोई भी रैंडम लोकेशन उठाएगा वो। ठीक है ना, ये पूरी लोकेशन 9 लोकेशन है, इनमें से कोई भी रैंडम लोकेशन उठाएगा और उधर एरे डिक्लेयर करेगा। और उसका साइज क्या होगा? 3। तो फर्स्ट कहेंगे उसने ये किया, तो वो कोई भी रैंडम लोकेशन उठाया, उसने कहा कि चलो मैं ये लेता हूँ, दिस लोकेशन। ठीक है, तो इसने 1 इधर डालेगा, 2 इधर डालेगा, 3 इधर डालेगा। सर लेकिन आपने कहा था कि 0 से स्टार्ट होती है। नहीं, वो 0 से स्टार्ट होती है क्योंकि इसका इंडेक्स 0 है ना, तो होगा इसका नाम जो होगा वो होगा एरे 0। तो मैं जब मेमोरी में कोई भी जगह होगी। मेमोरी में कोई भी जगह होगी तो मुझे, हाँ, जब मैं लिखूंगा एरे 0 तो आई एम एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स मेमोरी लोकेशन 7। ठीक है ना, मैं कहता एड्रेस है, एड्रेस को कोई नाम दे देते हैं। तो एड्रेस को नाम ने ARR दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता ARR का कौन सा ARR। तो 0 जो है वो बताता है कि पहला ARR है, 1 बताएगा दूसरा है, 2 बताएगा तीसरा है। ये ARR 0 हो गया, ये ARR 1 हो गया, और ये ARR 2 हो गया। असल में जो फर्क है ना जावा और C++ में, यानी जिस वजह से C++ ज्यादा पसंद है, वो ये है कि जावा ना आपको इन चीजों में काम करने नहीं देती है, पॉइंटर्स में। C++ कहती है कि करो अंदर, घुस जाओ अंदर, ठीक है, जो समझ में आता है, लेकिन भाई तुम ही जिम्मेदार हो। ठीक है ना, अब वो क्या होता है कि मेमोरी आप असाइन करें, और असाइन कर और एलोकेट कर दिया और डी एलोकेट करना भूल गए, तो मेमोरी लीक्स बन जाते हैं। जैसे हमने क्रोम में देखा नहीं है कि मेमोरी खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। तो वो यही होता है कि आपकी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं गड़बड़ की होती है किसी ने, और वो ढूंढ मिल नहीं रही होती कहाँ पे गड़बड़ की है। ठीक है, तो C++ जो है वो कहती है कि ठीक है तुम बहुत स्मार्ट हो, करते रहो करना है। ठीक है, तो जावा कहती है कि नहीं तुम स्मार्ट नहीं हो, मैं लेट मी हैंडल इट। ठीक है, तो वो आपको ना उसका काम नहीं करने देती जावा। ठीक है, तो ये इट्स सेफ, जावा इज सेफर, और इसकी वजह से थोड़ी सी स्लो है C++ के मामले में। ठीक है, थोड़ी स्लो है, C++ जो है ज्यादा तेज है। ठीक है, तो इसलिए लोग C++ में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें स्पीड चाहिए। लेकिन जिस तरह वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आगे स्पीड इतनी मैटर नहीं करती मोस्टली एप्लीकेशंस में, तो उसमें फिर आप जावा इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, तभी आपका एंड्रॉइड पूरा पूरा जावा के ऊपर बेस्ड है। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमने लिखा कि वही हमने किया कि हमने लिखा स्ट्रिंग, और हमने लिखा स्ट्रिंग, इसका नाम लिखा नेम्स, और इसको कर दिया इज इक्वल टू, मैंने लिखा था अल्फा और कॉमा, ये अब नजर नहीं आएगा, ब्रावो अच्छा सर, यहाँ पे वो प्लस साइन बीच में नहीं कॉमा आएगी? चार्ली। ये टीवी सीरीज देखा कि नहीं देखा? देखा है? नहीं देखा, वो देख लें। अच्छा, जब 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 मैं उम्र में आपसे छोटा था तभी आया था, तब देखा था, काफी पुराना है। ठीक है, तो 90s का, तो ऐसा ब्रावो चार्ली। ठीक है, अब हमने लिखा स्ट्रिंग नेम्स। अब क्या किया, हमने ये लिख दिया। अब कंप्यूटर से हमने कहा कि ये तो हमने लिख दिया है, अब तुम जानो। ठीक, अब इसकी लेंथ क्या है? 3। तब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि अच्छा यहाँ पे मेरे पास 6 मेमोरी लोकेशन है, मैं कोई भी रैंडम मेमोरी लोकेशन उठा लूँ, तो वो उठा के उसने 2 उठा लिया, तो वो अल्फा इधर लिखेगा, अल्फा
ऐसा ब्रावो, खैर बीटा में लिख देता हूँ, और चार्ली, इसको गैमा नॉर्मली लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा ब्रावो चार्ली, ठीक है। मैं सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 आर्मी, लंबर नहीं है, नंबर 1 आर्मी। लकड़िया कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा, अल्फा ब्रावो चार्ली, तो अल्फा यहाँ पे वैसे टेक्स्ट में लिखा हुआ होगा अल्फा, यहाँ पे ब्रावो लिखा हुआ, यहाँ पे चार्ली लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वो यूं आ जाएगा। तो इसमें जो नेम 0 है उसमें अल्फा है, नेम्स 1 में ब्रावो है, और नेम्स 2 में चार्ली है, ठीक है। तो ये इस तरह एलोकेट कर देगा। अभी 2 3 4 से मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब मेमोरी जो कंप्यूटर क्या करता है वो काफी एफिशिएंट बना दिया है कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर ना इस तरह नहीं करता है कि कहीं भी उठा के डाल दी, वो काफी कोशिश करता है कितना कॉम्पैक्ट कर सके, वो ये कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन इन प्रिंसिपल काम यही हो रहा होता है पीछे, ठीक। अब ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है बेवफा, पता नहीं आप क्या क्या इसमें बातें चल रही हैं। अच्छा, एनीवे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्ट्रिंग्स का, कैसे स्ट्रिंग्स काम करते हैं, मेमोरी लोकेशन का समझ में आया, ठीक है। और कैसे एलोकेट होती है ये समझ में आ गया, ठीक है। सर ओके, यहाँ तो समझ आ रहा है, लैब का बहुत कुछ देते हैं। सर क्लास में तो बहुत सब कुछ समझ आ रहा होता है। आपसे कितने लैब्स हो जाती हैं? सर 6 और 7 में मसला है, बाकी उनमें से कुछ हो गया था सवाल? कुछ हो गए थे हाँ सर, तो 6 इसका एंड मतलब मैं 7 मुश्किल नहीं देता, कुछ मुश्किल देता, कुछ मुश्किल नहीं देता, ठीक है ना। और वो है ही, वो मकसद ही ये है कि आप लोग सोचें उसके ऊपर, ठीक है। नहीं हो आप मुझसे कंसल्ट करें, किसी और से पूछें, कहीं और से पूछें। और क्रिकेट वाला है। सर मतलब थोड़ा सा आप हिंट दे देते हैं, मतलब करना भी है, सर हम कुछ देंगे लेकिन फॉर्मेट बता दें। देख, क्रिकेट वाला था वो मेरी नजर में मुश्किल नहीं था, लंबा था। सर थोड़े से मसले हो रहे थे। 30 मिनट क्या है यार, कुछ भी नहीं है। अगर आपको 2 घंटे भी लगे देन इवन दैट इज फाइन। देखिए आपको देखिए, ये आपको टाइम इससे लग रहा है क्योंकि यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग। अभी आपको टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, सभी कॉलम भूल जाते होंगे, कहीं पे डॉट लगाना भूल गए, कहीं कुछ और हो गया, तो वो आपको बहुत टाइम जाया करता है। जब आपके ये एरर्स खत्म हो जाएंगे तो योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। और ये एरर खत्म कब होंगे? प्रैक्टिस ज्यादा करने से। प्रैक्टिस कब करेंगे? जब आपको सवाल लंबा दिया जाएगा। सवाल लंबा दिया जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो रीजन है, ठीक है। क्वेश्चन जो था वो इटसेल्फ मुश्किल नहीं था। अच्छा, करना कैसे था? आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या थी? आपके पास 2 प्लेयर्स थे, ठीक है ना। आज ना लॉजिकल सोचना है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, प्लेयर 1 प्लेयर 2। तो मैंने 12 साल की सोचा। जरूरत नहीं थी ना, ठीक है। आपने लॉजिकली सोचा है, आगे प्लेयर 1 है प्लेयर 2 है, वो इसलिए क्योंकि या तो प्लेयर 1 होगा या प्लेयर 2 होगा। अच्छा, कोई आउट हो गया, कंप्यूटर को नहीं पता कौन सा आउट हुआ, ये भी प्रॉब्लम थी। प्लेयर 1 आउट है, प्लेयर 2 आउट हुआ, कैसे ख्याल रखें प्लेयर 1? सिंपल सी बात है, प्लेयर कोई भी आउट हुआ तो अगला जो प्लेयर है प्लेयर 3 है, ठीक है ना। और जो उस वक्त स्ट्राइक पे, या अंदाजा लगा, ये तो आपको पता है स्ट्राइक पे कौन सा, तो जो स्ट्राइक पे वो आउट हो गया। अब स्ट्राइक पे 1 था कि 2 था ये नहीं पता, आप क्या करेंगे? प्लेयर 1 प्लेयर 2 में मैक्सिमम जो वैल्यू है वो लेंगे। इन दिस केस इज 2, तो नेक्स्ट प्लेयर कौन सा होगा? 3 होगा। तो प्लेयर 1 में आप 3 डाल देंगे। अब अगर प्लेयर 1 है और प्लेयर 8 खेल रहे हैं, उनमें से कोई आउट हो गया, नहीं पता कौन सा आउट हुआ है, ठीक है। तो स्ट्राइक में था वो आउट हुआ है। अच्छा, स्ट्राइकर में हमने नया प्लेयर की वैल्यू डालनी है, इन दिस केस विच इज 9। दोनों कंपेयर करेंगे, बड़ा कौन सा है? 8 है, +1 करेंगे 9, वो जाके प्लेयर 1 के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो अच्छा, एक प्रॉब्लम ये था कि जब जब एक रन हो गया और जब प्लेयर चेंज हुआ तो अब वो स्विच कैसे करेगा, मतलब स्विच सिंपल सी बात है कि असल में जो वेरिएबल है वो एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, दो नहीं स्टोर कर सकता। अच्छा, मैंने अगर इस वेरिएबल को दूसरी वैल्यू दे दी, उसकी वैल्यू लूज हो जाएगी, तो उस वैल्यू कहीं और रख सकता हूँ ना। तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बना दूं, मैं कहूं, भाई तुम इसको रखो। सो का मतलब ये है कि मैं चलूँ कैसे? स्वैप का मतलब है कि ये वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। जो कि इनके पास जो फर्स्ट इनके पास जो पेन है वो मुझे चाहिए, लेकिन मैं एक वक्त में सिर्फ ये माउस हाथ में पकड़ सकता हूँ, मैं और चीज़ पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो मैं किसी को कहूँगा ना, याद इसको पकड़ो, उसको दे दिया, ठीक है ना। फिर मैंने इनसे पेन ले लिया इनका, अब मेरे हाथ में वो पेन आ गया।
अब मैं आपसे कह दूंगा कि ये मेरा माउस उसके पास, उससे ले लें, तो वो माउस आप उससे ले लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको नहीं दे रहा, मैं इनडायरेक्टली दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वक्त में एक चीज में मैं माजूर हूँ, बेचारा एक हाथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो एक वक्त में एक चीज पकड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में किसी से कहूँ ना मेरी मदद कर दो, तो वो एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे जो कि आपको टेम्पररी आके मदद करेगा। ठीक है, तो आप अपनी जो वैल्यू उसको दे देंगे, जो वेरिएबल बने वैल्यू वो टेम्पररी वेरिएबल को दे दी, वेरिएबल टू से वैल्यू ले ली, और अपनी वैल्यू जो है वो वेरिएबल टू को दे दी। इस तरह आप करेंगे, स्वापिंग कहते हैं इसे। ठीक, वैसे दो वेरिएबल से भी हो सकता है, लेकिन उसमें अरिथमेटिक चलती है, उसमें मैथ करना पड़ता है। ठीक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन नॉर्मली इस तरह स्वैपिंग होती है, तो इस तरह आप स्वैप करेंगे, तो वो स्वैप हो जाता है, आउट हो गया तो आप यूँ स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जो मकसद था, देखिए इसमें कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुश्किल है, ठीक है, या फिर लंबी है, या फिर वो या फिर आपने की नहीं हुई। आपको पता है वेरिएबल्स कैसे, वैल्यू कैसे डालें, आपने लॉजिकली सोचना है कि अच्छा मेरे पास, मैं लिमिटेड हूँ, मैं उस लिमिटेशन के अंदर रह के ही काम करना है, तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी। आपने उस लिमिटेशन को यूज करना है। ठीक है ना, अब जैसे कि अगर मैं अभी आपके हाथ बांध दूं, अब लिमिटेशन क्या है कि हाथ बंधे में आप कुछ नहीं कर सकते। फोन पे व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, मैं रिस्पॉन्ड करना है, तब आप कैसे करेंगे। या तो आप हाथ बंधे में अपना जूता उतारा, मोजा उतारा और पाँव से किया, ठीक है, या आप नाक से करेंगे, यू विल फाइंड अ वे ना। पॉइंट यही है, यू विल फाइंड अ वे। वही मकसद है, आपको लिमिटेड इन्वायरमेंट देनी कि जिसमें आपको लिमिट कर दी कि भाई यही ऐसी ज्यादा काम करना है, और कह दिए काम करो। अब यू हैव टू फाइंड क्रिएटिव वेज हाउ टू सॉल्व दैट। यही वजह है कि मैं लैब में हेल्प नहीं करता। आई विल टेल यू लाइक के ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो आपने खुद पहुंचना है उसमें। ठीक है, अब खैर वो मेरे खिलाफ शिकायत लगी जाती है, अक्सर अक्सर लगती रहती है, बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, लैब में हेल्प नहीं करते। रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो सोल्यूशन है पहुंच जाए। अगर आप उसके बाद लगे रहें, ठीक है ना, कुछ तो मुझे लेकर आए ना कि भाई आपने कुछ सोचा, कुछ बना के लेकर आए, इट मे बी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन कुछ एफर्ट मैं देखना चाहता हूँ। आप कुछ एफर्ट की गलत हुआ तो मैं आपको सही कर दूंगा, मैं अच्छा यहाँ पे हमने गलती की, आप ये करें, इसको यूं सही करें। लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं कि ये सर ये कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, तो वो मैं आई डोंट बाय दैट। ये मैं कहता हूँ आप कुछ करें, ये कुछ करके लाएं, मुझे कुछ दिखाएं, आपने कुछ कोशिश की है, मेहनत की है, मैं आपको सही डायरेक्शन पुश कर दूंगा, आपको सही चीज बता दूंगा, लेकिन आपने कुछ कोशिश करके लानी है। ठीक है, आप मुझे कुछ दिखाएंगे तो मैं उसके आगे आपको रिस्पॉन्स दूंगा। लोग मुझे अक्सर ईमेल करते हैं कि हम इधर फंस गए थे, मैं कोशिश करता हूँ उसको देख लूँ, कब बाद अगर लेट हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ देखूँ कहाँ गलती है, पॉइंट आउट कर देता हूँ ये गलती है। लैब में लोग कर रहे होते हैं, कहते हैं सर स्क्रीन शेयर करें, हमने देखा होगा स्क्रीन शेयर करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं वहाँ पे भी उनकी गलतियां बताता हूँ कि ये गलतियां, लेकिन मैं उनको सोल्यूशन नहीं बताता, क्योंकि सोल्यूशन आपने खुद पहुंचना है। रीजन क्या है, आप जॉब पर हैं, आपके बॉस ने कह दिया कि भाई ये करो, इसको सॉल्व करके आना है, आप कह रहे हैं सर बता देना कैसे होगा, नहीं हो सकता ना, आप नहीं कर सकते वहां पे, यू हैव टू कम टू द सोल्यूशन। या आप ये कहेंगे सर हमारे साथ बैठे सा करके दिखाए ना, हम ये साथ साथ, आप बोले मैं लिखूंगा, ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, अपने दोस्त को बिठा लिया तो मैं ज्यादा बैठा हूँ, आपका मुझे क्या करना है, वो बताता है, आप लिख देते हैं, आया समझ में कुछ नहीं। ठीक है, वो चीज़ हमने अवॉइड करनी है। ठीक है, आपने आपने इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है ना, ये सब सब जो ऑनलाइन है वो भी कर लें, समझ लें, जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं वो भी समझ लें। अगर मैं आपको उधर ना फेंकूँ ना, जैसे कि तैरने के लिए आप हजारों किताबें पढ़ लें, पानी में कूदेंगे नहीं, तैरना नहीं आएगा। ठीक है ना, मैं खड़ा भी हो जाऊं वहां पे, लाइफ गार्ड भी खड़ा कर दूं, जब आप एक को डुबकी लगेगी आपको निकाल देगा बाहर, ले वो कहेगा हाथ पांव मारो। ठीक है ना, तो मेरा मेरा मकसद ही ये है। ठीक है, मैनी स्टूडेंट डोंट एग्री विद दिस, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है? और ये क्यों समझता हूँ, क्योंकि मेरा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा फिनलैंड की इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है, मेरा जापान की इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है, मेरा फिनलैंड की एकेडेमिया में काम करने का एक्सपीरियंस है, मेरा जापान की एकेडमी में काम करने का एक्सपीरियंस है, मेरा पाकिस्तान की एकेडमी में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे यही अंदाजा हुआ है, जो मेरा है अपना एक्सपीरियंस, वो यही बताता है कि आई हैव टू थ्रो यू इनटू द वाटर। ठीक है ना, ताकि आप लोग सीखें। हाँ, आपको आप डूब रहे होंगे, मैं आपको पकड़ के ऊपर ले आऊंगा, लेकिन पाँव हाथ पाँव आपको मार दें। ठीक है ना, हाँ ये जरूर बताऊंगा, अच्छा हाथ पाँव मारे, गलत मारो, इस तरह मारो, लेकिन आप मुझे कुछ करके दिखाएं। ठीक है, तो इसलिए इसलिए मैं आपको वहाँ पर हेल्प नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कर लगे उसके ऊपर कुछ लेकर आए और फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, एग्जाम में हेल्प तो नहीं करूंगा ना।
एग्जाम एग्जाम में आपको प्रॉब्लम इसी तरह की आएंगी जैसा कि आपको आपको हम लैब में कराते हैं। सर तो वो आएंगे हम पहले कर चुके होंगे या नहीं। at this- नहीं टोटली नहीं। जैसे एग्जाम कोडिंग का होगा कभी रिटर्न का कोई नहीं होगा। नहीं एग्जाम्स जो है ना हो सकता है कि उसमें एमसीक्यूज हो, ठीक है, और कोडिंग के तो सवालात आएंगे। रिटर्न में हम क्या कहेंगे कि कोड हाथ से लिख दें, फिर यही होगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ही है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आगे बाद इतना टाइम है, आप कोड में सॉल्व करके दे दें। ठीक है, तो वो बात एक ही रहती है, हाथ से लिखें या टाइप कर दें, एक ही बात हो जाती है। ठीक है, ओके, सो ये हमारा अल्फा ब्रावो चार्ली हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, हमने लिखा इंटीजर एरे 0 1 2 3 4 हमने लिख दिया। लेंथ क्या थी? 5 थी, मैंने अभी आप लोगों से पूछा था। अब कंप्यूटर से आपने वो लेंथ लेनी है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे। ठीक, तो आप देखते हैं जो नेम ऑफ द वेरिएबल वो लिखते हैं ARR। आप ये नहीं लिखते कि ARR 0 या ARR 1 ARR 2। आप उस पॉइंटर की बात करें। ठीक, पॉइंटर तो पॉइंट कर रहे हैं, उस पॉइंटर को पता है कितनी आगे लेंथ है। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसे। तो जब मैं लिखूंगा ARR डॉट लेंथ, तो मुझे उस वेरिएबल की या उस पॉइंटर की मुझे वो लेंथ दे देगा। तो इधर जो लेंथ थी क्या थी? 5 थी। तो कंप्यूटर ये जो मैं कोड लिखूंगा ARR डॉट लेंथ, तो मुझे लेंथ दे देगा विच विल बी 5 इन दिस केस। अच्छा, इस्तेमाल कैसे होता है? इस्तेमाल ये होता है, आपको याद होगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आया होगा आपके पास। कब आता था? कमांड प्रॉम्प्ट में आता था। कमांड प्रॉम्प्ट में कब आता था? आप वो एक्सपेक्ट कर रहा होता था कि आप कोई इनपुट देंगे, आप इनपुट नहीं देते थे, तो आपको एरर देता था कि कमांड हमें आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रही। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कम है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि वो जो एरे है उसकी लेंथ चेक करता था वो, उसमें देखता है इनपुट डेटा कितना है। ठीक है, आप डेटा देना भूल जाते थे और अंदर आपने ARGS 0 कॉल किया हुआ होता था। अब ARGS 0 जो है ऊपर कोई वैल्यू दी नहीं है, नीचे ARGS 0 को आप कॉल करें तो वो कहता था यार ये क्या कर रहे हो, वैल्यू दी नहीं है आप कह रहे हो, तो वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सट्रैक्शन दे देगा। तो उधर जो थी वो लेंथ, तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि सबसे पहले, इससे पहले कि आप ARGS 0 कॉल करें, आप पहले चेक करें कि भाई उसकी लेंथ कितनी है भी कि नहीं, कुछ पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर उसमें कुछ डेटा है तो फिर मैं उसको कॉल करूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा, कॉल करूंगा। अगर डेटा कुछ भी नहीं है तो मैं उसको कॉल नहीं करूंगा ताकि मेरा प्रोग्राम क्रैश ना करे। ठीक, तो ये AR डॉट लेंथ वहां पे इस्तेमाल होता है। ये अभी हम देखेंगे, कोड में देखेंगे, कोड रिव्यू आगे चले, जल्दी जल्दी देखते हैं उसे। तो ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें देखें, इसको बल्कि मैं इधर से यहां से निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, क्लास है, उसका नाम है टेस्ट। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेंथ, और ये जो ऊपर से आर्ग्यूमेंट जो पास करूंगा, सो मैं लिख दिया कि जो आर्ग्यूमेंट्स मैं पास हो रही है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ में सेव कर लो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, और प्रिंट कर देगा आर्ग्यूमेंट्स को। तो इसका मतलब यही, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले ये जो आर्ग्यूमेंट नंबर से पास करूंगा ये उनकी चेक करेगा लेंथ कितनी है। जो भी लेंथ है वो एक लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। मैं फॉर लूप लगाऊंगा, वो क्या करे, फॉर लूप चलेगा 0 से लेके जितनी भी लेंथ है। फर्स्ट के 5 थी, तो 0 से चल के 0 से 5 तक जाएगा, यानी 0 1 2 3 4। तो आर्ग्यूमेंट 4 तक हो जाएगा। ठीक है, और उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे वो प्रिंट करना शुरू कर देगा। सबसे पहले आई की जगह 0 आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। मेरे पास सारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आएगी हमें पता ही कोड, शुरू में या फिर से एक्सप्लेन करता हूँ? सर फिर एक्सप्लेन कर दें सर। आर्क्स की लेंथ तो हमें पता ही नहीं ना कितनी नहीं, है। अगर नहीं लगती ना, अगर लगती होती यहाँ मुझे एरर दे रहा होता। ये लेंथ जो है ना एक वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग है ना, ये आर्ग्स, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो आप बात कर रहे थे। उससे एसोसिएट एक वेरिएबल जो कि लेंथ है। ठीक है, अभी वो ऑब्जेक्ट पे अभी तक पहुंचे नहीं है, इसलिए मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए तो आप ARGS डॉट लेंथ करके आप ले सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन? इस केस में नहीं, अभी नहीं लेंथ गिवन।
अभी मैं बताता हूँ, ठीक है. So let's come over here. We do cd dot dot dir. हमारे पास ये टेस्ट डॉट क्लास टेस्ट डॉट जावा बनी हुई है, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ. जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड जावा टेस्ट. अब क्वेश्चन आता है लेंथ कितनी है. लेंथ उतनी है जितनी मैं आर्गुमेंट्स दूंगा. ठीक है, तो मैं कहता हूँ हेलो दिस इज उमेर. तो कितनी आर्गुमेंट्स है? 4. लेंथ कितनी होगी? 4. तो मैं इसको एंटर दूँ. ठीक है, तो अब जो पहले मैं लिखता था args 0 ये है, args 1 ये, args 2 ये, args 3, वो आप लिखने की जरूरत ही नहीं है. मैं फॉर लूप लगा के सारी चीजें आउटपुट पुट कर सकता हूँ. सही है. आउटपुट जो है वो इंटीजर फॉर्म में तो नहीं है। इधर कोई नंबर है? क्या? इधर कोई नंबर है? आपका सवाल क्या था कि आउटपुट इंटीजर फॉर्म में तो नहीं है? अच्छा मतलब मैं कुछ भी टाइप कर दूंगी वो उसमें मतलब आर्ट लेंथ जो है वो हो जाएगी। आप कुछ भी टाइप करें, करके देख लेते हैं. ये है, मैं लिख देता हूँ 134 हाई 678 गुड 5A. ठीक है, तो आउटपुट बताइए, सारा आउटपुट स्ट्रिंग में है या आउटपुट इंटीजर में या मिक्सचर है? नहीं, सारा स्ट्रिंग है. ये मैंने स्ट्रिंग में आपको है, बताया था स्ट्रिंग कि है. आप जब आप इनपुट दे रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग, जो आप आउटपुट ले रहे हैं वो भी स्ट्रिंग ही है, क्योंकि आउटपुट जब भी देता है हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है. आपको अगर इंटीजर आउटपुट है आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है. नहीं, खैर जावा खुद कन्वर्ट करती है, देता हुआ वो स्ट्रिंग फॉर्म में है. ठीक है, तो यस, नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करता ना जावा. जावा एक्सेप्ट नहीं करता. जावा को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है वहाँ पे necessary। जहाँ पे आपने करना चाहते हैं. ठीक है, आप सबको करें, सबको भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने हेलो दे दिया, हेलो तो इज नॉट एन इंटीजर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है. तो वो आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, लेकिन आपने देखा कि इस तरह मैंने उसको वैल्यूज दी और सारी वैल्यूज स्ट्रिंग अंदर गई, उसने सबको प्रिंट आउट कर दिया. ठीक है, तो ये एक तरीका है. अच्छा, अब ये जो है मैं लिखा था इंट लेंथ इज इक्वल टू आर्क्स डॉट लेंथ, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि आई जस्ट कट दिस आउट, इसकी जगह पे मैं डाल दूं और इसको मैं रिमूव कर दूं. मीन्स द सेम थिंग. ठीक है, यही मैं कर सकता हूँ. इट मीन्स द सेम थिंग. तो और आप ये भी कर concise सकते हैं, कर जैसे वेरिएबल बचता है, बट इट माइट कंफ्यूज समवन. लेंथ लिखेंगे तो वो क्लियरली उसमें बताइए लेंथ की बात हो रही है. ठीक है, तो ये अब आपकी प्रेफरेंस है. जैसे मैं नहीं कह रहा कोई अच्छा क्या, कोई अच्छा तरीका कोई बुरा तरीका है, तो ये आपकी प्रेफरेंस है. मैं पर्सनली नहीं करता, मैं इसी तरह करता हूँ. ठीक है, और विद टाइम आप इसी तरह करना शुरू कर देंगे. इट्स ईजियर. ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं. इस फॉर लूप को मैं वो कर देता हूँ. अच्छा अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल, मैं अब उनका सवाल था जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड था, मैं उसको ना एक्सप्लेन करता हूँ कि वो मैं क्या बात कर रहा हूँ. होपफुली यू विल गाइस कैन विल गेट इट. ठीक है, जब आप लिखते हैं इंटीजर डी फर्स्ट करें. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ना एक मेमोरी एलोकेशन करता है, उसको इंटीजर का साइज के मेमोरी लोकेशन उठाता है, उसको नाम वो डी दे देता है और वो एलोकेट हो जाती है. अब जब तक ये फंक्शन चलता रहेगा ना, तो वैल्यू एलोकेटेड रहेगी. इस फंक्शन में कहीं भी मैं लिखूं डी इज इक्वल टू 9, ये लिख दूं, माइनस लिख दिया मैंने, डी हमें नजर नहीं आई, इज इक्वल टू 9 लिख दूं, उसके बाद मैं 5-6 और लाइनें लिखूं, उसके बाद फिर से मैं लिख दूं डी इज इक्वल टू 10, फिर मैं उसका आउटपुट ले लूं डी डी का. तो ये जब तक ये फंक्शन चलता रहेगा ना, तो वैल्यू एलोकेटेड रहेगी. तो इसका मतलब ये कि ये जो फंक्शन है ये 4 बाइट्स जब भी इसको रन करेगा, 4 बाइट्स जितनी देर तक ये रन करेगा, 4 बाइट्स एलोकेटेड रहेंगे. ठीक है ना, तो आगे मेमोरी 4 बाइट्स की हमेशा एलोकेटेड रहेगी. अब इस दौरान मैं लिख देता हूँ इंट डी और फिर मैं कॉमा डाल के एम लिख देता हूँ.
अगेन एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो m है, तो अब टोटल मेमोरी जो कि हर बार एलोकेटेड रहेगी वो 8 रहेगी, ठीक है ना, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब फर्स्ट एक बीच में आप कहते हैं कि यार मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है इस वेरिएबल की, तो मैं कंप्यूटर से कहता हूँ कि इस मेमोरी को फ्री कर दें, लेकिन अगर आपने इस तरह डिक्लेयर कर दिया फ्री नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको फ्री नहीं कर सकते, तो आपका जब फंक्शन चलेगा वो हमेशा 8 बाइट्स लेता ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो वो है C++, उसमें भी यही चीज होती है, बिल्कुल इसी तरह ही होती है। उन्होंने ना पॉइंटर से कॉन्सेप्ट लाया था कि पॉइंटर्स आप करें, पॉइंटर क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, कंप्यूटर को बताएगा कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, जब काम खत्म हो जाएगा तो कंप्यूटर को बताएगा कि अच्छा मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको फ्री कर दो, तो फिर वो डीएलोकेट हो जाएगी मेमोरी। जावा ये काम ऑटोमेटिकली करती है, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि जब मैं लिखता हूँ इंटीजर, अभी मैं जैसा मैं लिख रहा हूँ इंटीजर, मैंने किया ARR, तो ये मैंने पॉइंटर बनाया। अब मैं कहता हूँ मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करो, तो उसके लिए मैं इक्वल टू न्यू करता हूँ, न्यू, आई एम क्रिएटिंग न्यू मेमोरी लोकेशन इंट, और इसको मैं 10 कह देता हूँ, 10। अब मैं कह रहा हूँ कि पॉइंटर जो है नई मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करे और उसमें 10 लोकेशन कंसेक्टिव उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दें, ये मैंने इससे कर दिया, इतना तो समझ में आ गया हम कर रहे थे। तो जो C++ है उसमें अगर मैं कहूँ कि यार इस मेमोरी लोकेशन जहाँ मैं पॉइंट करूँ उसको फ्री कर दो, ठीक है, तो आप लिखते हैं उसमें डिलीट, या आप ये लिखते हैं, ठीक है, तो उस मेमोरी लोकेशन को फ्री कर देता है। वो कहता है तुम उधर पॉइंट तो करता रहता है, लेकिन कहता है कि मैं पॉइंट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कितनी मेमोरी लोकेशन है, इट्स नॉट अ डिस्ट्रक्टर, उससे कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो आप उसे मेमोरी फ्री कर देते हैं। जावा जो है वो ये काम ऑटोमेटिकली करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जावा कहता है भाई आप स्मार्ट नहीं है, मैं स्मार्ट हूँ, लेट मी हैंडल दिस। तो जावा इस चीज को ना खुद ख्याल करता है, तो वो आपको वो कहता है कि ये मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ये न्यू लिखते हैं, तो हमेशा जब भी हम न्यू लिखते हैं तो एक्चुअली हम डायनामिकली मेमोरी बना रहे होते हैं, और जावा खुद ख्याल करता है कि अच्छा अगर ये मेमोरी अब इस्तेमाल नहीं हो रही तो मैं इसको फ्री कर दूं, उसको इस्तेमाल जब उसको खुद फ्री कर देता है, ठीक है, उसको गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जावा ये आपको कंट्रोल नहीं देता, तो ये जो था कि न्यू क्यों लिखते हैं हम न्यू इसलिए लिखते हैं, ठीक है। अब होपफुली आप लोगों को समझ में आया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गया इसके पीछे। उस्मान आप उसकी फिक्र ना करें, जावा खुद हैंडल करेगा फ्री मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताया था कि C++ में आप कैसे फ्री करते हैं, ये जावा का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप उसे परेशान ना हो। वैसे वो सवाल आया हुआ था तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एफर्ट किया। अच्छा, अब मैंने लिखा कि इंट अरे इज इक्वल टू न्यू इंट दिस, ठीक है। तो मैं अब इसको, अब यहाँ पे इसका नाम ARR है, तो यहाँ पे आर्क्स लेंथ को मैं ARR लेंथ कर दूंगा, ठीक है। तो चूंकि इसकी लेंथ 10 मैंने डिफाइन किया, तो इसको पता है कंप्यूटर में कितनी लेंथ है, ठीक। और इसमें अब मैं कुछ भी कर दूं कि ARR आई, यानी कि कोई भी आयत लोकेशन है उसमें आई मल्टीप्लाई बाय 10 + 5, कुछ भी कर दूं, ठीक है। और फिर मैं इसको कर दूं सही, तो बस क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहला क्या आउटपुट होगा, फिर 15 25 35 35 इस तरह चलता रहेगा, हर 100 तक आएगा। तो इसको कर देते हैं यहाँ से, मैं आप डायरेक्टली यहीं से रन कर देता हूँ, ठीक है। तो सुना आ गया हमारे पास। तो आ, हाँ, इसमें आप जो गलती कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, बताएं बताएं कि गलती क्यों। 11 हो जाएंगे ना, 11 लोकेशन में हमने जो एवरेज डिक्लेयर किया है वो हम 10 का किया हुआ है, तो 11 लोकेशन है ही नहीं, करता। तो ये आप गलती कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मोस्ट लाइकली एरर देगा आपको ये एक्सेप्शन थ्रेड मेन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इंडेक्स इसका मतलब क्या है कि एरे इंडेक्स नहीं, एरे इंडेक्स
कह रहे हैं जो एरे है उसका जो इंडेक्स है आउट ऑफ बाउंड्स, तो एरे की बाउंड से बाहर चला गया, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये एरर्स पढ़ना और समझना जरूरी है। ठीक है ना, एरर आ गया, ओ क्या, आप पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो ये एरर इसलिए है, एरर को देखें, पढ़े है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और अच्छा हमें कैसे पता चलेगा, ओहो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या चीज़ है यार, सिंपल सी बात है यहाँ पे करना। So as to indicate that an array has been accessed with an illegal index। ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल आपकी जिंदगी इतनी आसान है, क्योंकि गूगल आ गया, गूगल आ गया, गूगल। हमारे एज में नहीं था गूगल, हमारे एज में इंटरनेट भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग खुद से ट्रायल एंड एरर सीखते थे, किताबें पढ़ पढ़ के सीखते थे। अभी कोई चीज मालूम करनी है, सिंपली गूगल करें, मालूम हो जाती है। स्टूडेंट्स ये भी नहीं करते। सर ये क्या हो गया, बता दें। तब मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसकी आदत डालें। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, मुझे कितना टाइम लगा है मालूम करने में। ठीक है, तो इसकी आदत डालें। ठीक है, लर्न इट दिस वे। कहाँ गए। ठीक है, तो अ, इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो कोई सवाल, वील एंड दिस हियर। अच्छा अभी एरे का टॉपिक चलेगा, ठीक है ना, अभी ज़रा लंबा चलेगा थोड़ा सा, तो हम करते रहेंगे, लेकिन आज आज की लैब के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आज की लैब में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आपसे लैब में 15 मिनट के बाद लैब में मुलाकात होती है, उधर फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।